Praise the Lord. जय मसीह की। We're so happy to be here, हम आज बहुत ही आनंदित हैं कि हम आपके बीच में हैं and we are happy that you all have joined us. और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आप हमें ज्वाइन कर सके आज। Please let us know that you can hear us, you can see us. आप हमें प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आप हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। We want to thank, first of all, most importantly, we want to thank the Lord. आज हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह का। Thank Him for connecting us, bringing us together. हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं हमें जोड़ने के लिए और इकट्ठे करके लाने के लिए यहाँ पर, For blessing us with each other, और एक दूसरे के साथ हमें आशीषित करने के लिए, and most of all, blessing us with Him. और सबसे ज्यादा हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यीशु से खुद से नवाजा है, खुद से आशीषित किया है। We also want to thank Sister Sharon Rasman. और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी मसीह में प्यारी बहन शैरन रासमन का, And her Facebook page, She Believed. और उनके इस फेसबुक पेज के लिए जिसका नाम शी बिलीव्ड है। So thank you for welcoming us. थैंक यू, हमें धन्यवाद करते हैं हमें वेलकम करने के लिए। So God put a message in our heart that we just wanted to share with you. और परमेश्वर ने आज जो वचन हमारे दिल में डाला है, हमारे आत्मा में डाला है, हम बस आपके साथ आज उसको बांटना चाहते हैं। And that is to trust the Lord with all your heart. और जो वचन है वो है कि परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा करो। So we're going to read from Matthew 14:22-36. और हम मत्ती में से पढ़ेंगे 14, 22 और उसका 36 तक, और फिर प्रार्थना में जाएंगे। And let's start with prayer. और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we come before you. We thank you, Lord, for this opportunity. We thank you, Lord, for all your many blessings. We thank you for your grace, your mercy, your loving kindness towards us. Lord, we ask that your will be done in this meeting. We ask that you lead and guide us. Bless us, Lord, with your peace. And let only what you want said be said here. And that your will be done above all. We ask you to please bless the technology, that it works fine without any issues. And lead our words, our thoughts, our actions. Let it all be directed towards you, Lord. Always. All praise and glory be to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's read from Matthew 14:22-36. आइए हम पढ़े मत्ती में से, मत्ती जो नए नियम की किताब है, और उसमें से पढ़ने के लिए निकालेंगे हम 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय, उसका 22वां पद से लेकर। It says, immediately he directed the disciples to get into the boat and go ahead of him to the other side, while he sent the crowds away. After he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. But the boat was already a long distance from land, tossed and battered by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately he spoke to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." Peter replied to him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was frightened. And he began to sing, and he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus extended his hand and caught him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ूंगी, फिर से बता देती हूँ। ये है मत्ती उसका 14 उसके 22वें पद से, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करे।
वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वे रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे, उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Amen. Amen. Praise be to God for His word. परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर कलाम के लिए। And before we continue with the message, we're going to sing a song of praise and worship to honor the Lord. और इससे पहले कि हम वचन में और भी गहराई से जाएं, आइए हम एक आराधना का गीत गाएं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am, and I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh God, here I am, oh Lord,
I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Lord Jesus, we are here as a couple, as a family. हम आपके सामने हैं अब्बा पिता, और आप हमें अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें. आप हमारे मुंह को आशीषित करें और निकलने वाला हर एक शब्द आपकी पवित्र आत्मा में भीगा हुआ हो, ताकि लोगों के मनों में घर कर जाए. और ये वचन पिता आप लोगों के हृदय को तैयार कर दें कि इस वचन के बीज को पिता वो रिसीव कर सके और अच्छी भूमि में ये वचन गिरे, यीशु के नाम से. आमीन. Amen. Praise the Lord. जय मसीह की. फिर से Thank you again for being here. आपका धन्यवाद एक बार फिर से हमारे बीच में होने के लिए. So we'll continue with Matthew's account in chapter 14. तो हम आगे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मत्ती 14 में जो बताया गया है, जो हमने अभी पढ़ा था, मत्ती 14 यानी मैथ्यू चैप्टर 14 उसका 22वें पद से. Starting out at verse 22. और मैं शुरू करना चाहता हूँ 22वीं पद को. So it says, Jesus directed the disciples to get into the boat and go ahead of him. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद चेलों को ये आदेश दे रहे हैं कि तुम नाव पे जाओ और मुझसे आगे जाओ. So Christ sends us out to do his work, to do the work of his kingdom, and often we will face some storms. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह है जो खुद हमें अपने चेलों को, यानी हम भी उनके चेले हैं, हमें बाहर भेजते हैं, दुनिया में भेजते हैं, और फिर हम आगे जाके कुछ तूफानों का सामना करते हैं. In verse 24, they are stuck in a storm, all the disciples in the boat. अगर हम आगे 24वें आयत में देखें तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो सारे यीशु मसीह के जो चेले थे, जो 12 के 12 चेले थे, वो उस तूफान में, उस नाव में फंस के रह गए थे. So they're stuck in a very bad situation. तो अगर हम सोचे तो वो एक बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसे हुए थे. They're somewhere in the middle of the sea and far away from land. और वो कहीं पे एक समुंदर के बीच में थे, गलीली के समुंदर के बीच में थे, जो भूमि से, जो लैंड था, जो भूमि थी, उससे काफी दूर थे और समुंदर के बीचों बीच में थे. The waves are tossing them here and there. और जो वेव्स थी, जो लहरें थी समुंदर की, वो उनको ऊपर नीचे यहाँ वहाँ घुमा रही थी. It says the wind was contrary towards them, so they're fighting against the wind to get through it. तो यहाँ पे हम जानेंगे पढ़ने पे कि जो हवा थी, जो विंड थी, वो इनके विरोध में आ रही थी. तो वो उस हवा का सामना कर रहे थे, वो उसके विपरीत जाने की कोशिश कर रहे थे. They're physically tired, वो शारीरिक रूप से हम सोचें तो थक चुके होंगे, mentally exhausted, मन से सोचें तो दिमागी रीति से भी बिल्कुल थक चुके होंगे and afraid. और डरे हुए हैं. That's really a bad situation to be in, right? और सच में ये एक बहुत ही बुरी परिस्थिति है किसी के लिए भी. Sometimes in our own lives, when God gives us assignment, He sends us out. कई बारी हम अगर अपने खुद के जीवन में देखें तो जब यीशु मसीह हमें कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई काम करने को बोलते हैं और बाहर भेजते हैं And हमें, we may face challenges. तो हम भी बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारे खराब परिस्थितियों का सामना करने पे हो सकते हैं. That doesn't mean that we're necessarily on the wrong path. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे सामने से मुसीबतें आ रही हैं, खराब परिस्थितियाँ, तूफान आ रहे हैं, तो हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे Or हैं, that we're making some sort of mistake. और या कि हम कोई गलती कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई है. If we are following Christ, we can be confident that we are on the right path. अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो हम इस बात से में निश्चित रहें कि हम यीशु मसीह के पीछे चल के गलत नहीं है रास्ते पे जा सकते, हम सही रास्ते पे ही चल रहे हैं.
Christ sent them out, so Christ knew what they were going to face out in the sea. और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने ही उनको बाहर भेजा, अपने से आगे भेजा। तो यीशु मसीह को पता था कि आगे एक तूफान आने को है। He knew that storm was going to come, and he knew they were going to be in the middle of it. वो यीशु मसीह जानते थे कि अभी इनको मैं आगे भेजूंगा और तूफान आएगा और ये तूफान के बीचों बीच में हो जाएंगे। So some things to highlight here is, number one, कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ आपके सामने। जो पहली चीज है वो ये है, nothing comes as a surprise to God. कोई भी चीज यीशु मसीह के सामने किसी भी प्रकार से सरप्राइज नहीं होती। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। He is all-knowing. वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। He knows your past, present, and your entire future. यीशु मसीह आपके भूतकाल को और प्रेजेंट काल को और भविष्य काल को भी जानते हैं। Second, he's not going to send you out all alone. और अगर भी यहाँ पे ध्यान दें, दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि वो आपको अकेला नहीं भेज देंगे किसी मिशन पे, किसी असाइनमेंट पे। Even though they were in a bad situation, at least all the disciples were together. अगर वो एक बुरी परिस्थिति में फंस गए थे, एक तूफान में फंस गए थे समुंदर के बीचों बीच, पर कम से कम वो अकेले नहीं थे। उन सब के साथ वो एक दूसरे के साथ थे, एक ग्रुप में थे। In whatever ministry that you're in, आप किसी भी सेवकाई में क्यों ना है मेरे प्रिय, God will provide you friends, परमेश्वर यीशु मसीह आपको दोस्तों से नवाजेंगे, brothers and sisters, भाई बहनों से ब्लेस करेंगे। at least one other person to be with you. कम से कम एक शख्स तो वो आपको देंगे जो आपके साथ होंगे। This is often so that we can encourage each other, pray for each other. और ये इसलिए मैं समझता हूँ ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। And they'll stand by you in the storm. और वो आपके साथ उस तूफान के बीच में खड़े होंगे। They recognize God's calling on your life. वो परमेश्वर की जो बुलाहट आपके जीवन पे है, वो उस बुलाहट को पहचानेंगे। And if you ever falter or fall, they can help you up, they can pray for you, they can encourage you. और अगर आप कभी रास्ते से भटक गए, इधर उधर गलत चले गए, तो वो आपको सही रास्ते पे लाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। This is truly a blessing, and we should cherish such friends. और ये हम सोचे तो सच में एक आशीष है ऐसे दोस्तों का, ऐसे लोगों का, मसीह में ऐसे भाई बहनों का होना। और हमें ऐसे भाई बहनों को जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, उन्हें हमें चेरिश करना चाहिए, बहुत कीमती समझना चाहिए। Amen. आमीन। Third, we should take away from this is, in the middle of the storm, sometimes we can get a new revelation of Christ. और अगर हम तीसरी बात को यहाँ पे सोचें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने है, वो ये है कि हम तूफान के बीच में यीशु मसीह से के एक नए रेवलेशन को, उसके एक नए प्रकाशन को हम रिसीव करेंगे। This is not to say something new that nobody else in the church has ever known. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस बात को चर्च में बाकी लोग नहीं जानते। It just may be new for you, something that you personally did not know about Christ. हो सकता है कि चर्च के बाकी लोग जानते हों, लेकिन आपने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन तूफान के बीच में आपको वो प्रकाशन मिलेगा जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। Think about the disciples. Had they not gone out in this boat, had they not gone out during the storm, they would not have witnessed Christ walking on water. अगर हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में सोचें, तो अगर यीशु मसीह से आगे, यीशु मसीह की बात मानकर वो उस नाव पे नहीं गए होते, तूफान में नहीं गए होते और इतना बुरा हालात नहीं होता, तो शायद वो यीशु मसीह को पानी पे चल के आते हुए नहीं देख पाते। So usually in times of our adversity, in our challenges, we get to see God's majesty. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे बुरे परिस्थिति में, बुरे हालातों में हम यीशु मसीह के एक नए प्रकाशन को अनुभव करेंगे। I want you to take courage knowing मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप हिम्मत बांधें, that no matter what you're going through in life, क्योंकि आप जीवन में किसी भी हालात से क्यों ना होके गुजर रहे हो, don't be afraid. आप ना डरे मेरे भाई बहन। Christ is with you. यीशु मसीह आपके साथ है। If you can't make it to that land, if you can't cross that sea all by yourself,
अगर आप खुद से उस समंदर को पार नहीं कर सकते, जो परेशानी का समुंदर आपके सामने है, जिसके बीच में आप हैं, अगर आप उसको पार करके सूखी भूमि पे, सुरक्षित स्थान पे नहीं पहुंच पाते, don't worry, Christ will come to you. तो आप परेशान ना हो, यीशु मसीह खुद आपके पास पानी पे चल के आएंगे। Don't doubt the path that you're on. आप बिल्कुल भी शंका में ना जाए मेरे प्रिय। आप ना सोचे कि जिस रास्ते पे आप यीशु मसीह ने आपको भेजा है, ये पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। Don't doubt the calling that God has on your life. आप यीशु मसीह की उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को जो आपके जीवन पे है, आप उसको डाउट ना करें मेरे प्रिय। If Christ has sent you, then be assured that He is with you, He is faithful, He is not going to leave you. अगर यीशु मसीह ने खुद आपको भेजा है, तो आप इस बात से में बिल्कुल आराम से रहें कि यीशु मसीह आपको संभालेंगे, वो आपको देखेंगे, आप उनका काम कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। He has not just forgotten about you. आपको ऐसा ना महसूस हो मेरे प्रिय कि यीशु मसीह तो बस आपको बुला के अब भूल गए हैं। Remember, God's word also says that He cares for even the littlest sparrow, that make sure that they are fed. So don't worry about that you'll be forgotten or something like that. आप याद करें उस परमेश्वर के वचन को जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, शायद गोरैया कहते हैं उसको हिंदी में, वो भी परमेश्वर के इच्छा के बिना नहीं गिरती। और वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं और आप तो एक चिड़िया से कहीं ज्यादा परमेश्वर के बहुमूल्य हैं। So God knows the oppositions that you're going to face. तो परमेश्वर जानते हैं कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, आप किन मुश्किलों का, और जो आपके विरोध में लोग और बातें आ रही हैं, आप उनका कैसे सामना कर रहे हैं। Just hang on in prayer. बस आप वहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा देर सब्र कर लें, Know that Christ is coming towards you. और इस बात को जान लें कि यीशु मसीह खुद आपके पास चल के आ रहे हैं। I know there are all sorts of doubts that are going to come in your mind, in all our minds. और मैं इस बात को जानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हर प्रकार के शंकाएं और डाउटफुल बातें मन में आती हैं, और हम सबके ही मनों में ऐसी बातें आती हैं। Now, this isn't explicitly written, but I'm sure the disciples were thinking and saying to each other, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वचन में तो उस प्रकार से नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं इस परिस्थिति को मन में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से चेले उस नाव में बातें कर रहे होंगे। they were probably saying, did we hear him right? वो शायद आपस में एक दूसरे को देख के बोल रहे होंगे, तूने सही सुना था या मैंने सही सुना था, हमने सही सुना था, Were we supposed to come this way? क्या हमें यहाँ आना चाहिए था, Were we हमें supposed to take this boat? क्या हमें इस नाव में, इसी नाव पे आना चाहिए था, Did he really send us out here in the middle of the sea? क्या सच में उसने हमें तूफान के बीच में यीशु मसीह ने भेज दिया है। Did he not know that a storm was going to come? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि तूफान आने वाला है। Doesn't he really care? क्या उसको हमारी कोई परवाह नहीं है। Remember, there was a storm earlier in the Gospels that they faced when Jesus was asleep in the boat. और अगर हम याद करें तो सुसमाचार जो गॉस्पेल की बुक्स हैं, वहाँ पे इस प्रकार से एक और तूफान लिखा है जहाँ पे यीशु मसीह नाव के भीतर सोए हुए थे। And they came and woke him up because they were scared, and they said, don't you care? और उन्होंने आके यीशु मसीह को जगाया कि आप सो रहे हो, आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। So we all get these doubts. तो हम सबके मन में ऐसी डाउट वाली बातें, शंका वाली बातें आ जाती हैं। So if the disciples who witnessed all these miracles have doubts, it makes sense that even those of us would face doubts as well. तो आप सोचें इस बात को मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ पाएंगे कि वो चेले जो यीशु मसीह के साथ इतने बड़े बड़े मुआवजों को देख रहे थे, इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे थे, उनके मन में भी ये डाउट जब आ गया, ऐसी डाउटफुल वाली बातें आई, तो मेरे और आपके मन में आ सकती है, इस बात को हम समझ सकते हैं। So don't feel too bad about yourself if it ever happens in your mind. तो अपने आप को इस बात के लिए आप बुरा भला ना सोचने लग जाए। डोंट बीट योर सेल्फ कि मेरे मन में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ मैं ऐसे कैसे बुरा सोच सकती हूँ, मैं डाउट कैसे कर सकती हूँ। But of course, fight off those doubts. Don't just dwell on them. लेकिन हाँ, जरूर से उन डाउट्स को, उन ऐसी खराब बातों को आप जब मन में आती हैं तो उनको लेके ना बैठे, उनको तुरंत यीशु के नाम से अपने दिमाग से निकलने की आज्ञा दें। So remember, God allowed them to endure this storm, this trial.
तो फिर से हम याद करेंगे कि देखिए, जो मैंने पहले भी बोला कि यीशु मसीह ने जानबूझ के उनको एक तूफान में जाने के लिए बोला, और यीशु मसीह चाहते थे कि इस तूफान का उसके चेले सामना करें। Now, as soon as the storm started, as soon as those first waves started going up, and as soon as the wind started going against them, it's not like Jesus showed up immediately as soon as that storm started. तो मैं यहाँ पे ऐसे इमेजिन करता हूँ कि जैसे ही पहली लहर उठी होगी और पहली जोर का हवा का झोंका आया होगा, ऐसा तो नहीं मालूम देता है वचन से कि उस पहली हवा और पहली लहर से ही यीशु मसीह चल के आने लग गए थे। God allowed those waves to hit them for some time, that wind to hit them for some time. यीशु मसीह ने इस बात को अलाउ किया कि कुछ समय के लिए तूफान के बीच में उनकी नाव ऊपर नीचे जाए, हवा के थपेड़े उनके नाव पे पड़े, उनके मुंह पे पड़े। And he did this so that he can build up their faith. और यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा किया ताकि वो उनके विश्वास को मजबूत बना सकें। He allowed them to be in this situation longer so that their faith kept building. उन्होंने यीशु मसीह ने उनको इस परिस्थिति में थोड़ा सा ज्यादा रहने दिया ताकि उनका विश्वास मजबूत हो सके। God knows exactly how much you can bear. परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि मैं और आप कितना सह सकते हैं, हमारी सहन शक्ति को जानते हैं। Remember, God's word says that He's never going to put something on us that we cannot endure. और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वचन इस प्रकार से कहता है कि वो हमें कभी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जिससे हम निकाले ना जाए, या हमारी सहन शक्ति के बाहर किसी परेशानी को हमारे जीवन में नहीं आने देंगे। So the key point here are storms are faith building moments. तो मैं इस की पॉइंट को आपको देना चाहता हूँ, और मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बोलूंगी, अगर आप रिप्ले देख रहे हैं या आप अभी सुन रहे हैं, आप इन की पॉइंट्स को नोट कर लें, कमेंट में डाल दें। और जो की पॉइंट मैं आपको इस समय देना चाहता हूँ वो है कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो फेथ बिल्डिंग मोमेंट है, यानी कि तूफान में आपका विश्वास मजबूत होना शुरू हो जाता है यीशु मसीह पे। Amen. आमीन। In Matthew 24, verse 13, मैथ्यू 24, मत्ती 24 और उसकी 13 में ऐसे लिखा है, but the one who stands firm to the end will be saved. जो अंत तक रुका रहेगा, जो अंत तक धैर्य धरेगा, वो बचा लिया जाएगा। God is asking us to persevere, to endure. परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि हम परसीवर करें, हम सहें चीज़ों को जो हमारे सामने आ रही हैं। वो चाहते हैं कि हम उसको एंड्योर करें, हम उसको सहें, उसका सामना करें। Also, something to highlight from this text. और भी मैं किस बात को आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। There's going to come a time in your life and in our lives, in all our lives, हम सबके जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है where we can decide either to stay with the majority opinion जहाँ पे हमारे सामने एक चॉइस होएगी, हमें चुनना होएगा कि जहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, जो सब लोग कह रहे हैं जिस बात को, हम उसको चुने। Peter was facing such a dilemma. पर पीटर जो है, जो पतरस है, वो एक ऐसी परिस्थिति को सामना कर रहा था जहाँ पे वो सोच रहा था कि वो लोगों की सुने या He was stuck between a choice where either he stays in the boat with all his friends and play it safe there, वो एक ऐसे चुनाव में फंसा हुआ था कि या तो वो नाव में रहे, अपने दोस्तों के, जो उसके साथ के संगी साथी चेले थे, उनके समान वो नाव में ही रहे, या फिर आगे बाहर आ जाए, or whether he should step out alone. और या वो अकेला ही नाव से बाहर आ जाए। Remember, they were doubting. They thought, is this Jesus or is this a ghost in the water? याद करें, जो अपने वचन में पढ़ा है उसमें था कि वो इस बात पे शंकित थे कि क्या ये यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं या कोई भूत प्रेत आ गया है। Maybe thoughts will come in your mind saying, you don't have to do this. आपके मन में जब ऐसा कोई चुनाव का समय आएगा मेरे प्रिय, तो क्या पता आपके मन में ये बात आए कि तुम्हें इस बात को करने की जरूरत नहीं है। Play it safe like all the other people. इसको सेफ रहते हैं, सेफ चुनाव करते हैं, जैसे बाकी लोग बैठे हुए हैं नाव में, बाहर नहीं आना चाहते, तो मैं भी नाव में उनके साथ चुपचाप बैठता हूँ। Sometimes people will say, be practical. कई बारी लोग आपको बोलेंगे बी प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। Oh, are you sure this is not a good idea?
तुम श्योर हो, सच में तुम ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं लगता। Are you sure this is God speaking? और और तुम्हें लगता है कि यीशु मसीह ही ये कह रहे हैं तुमसे, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ नहीं लगता। And keep in mind, these words can come from other Christians as well. और इस बात को ध्यान दें कि जिस प्रकार यहाँ पे चेलों के मुंह से ये बातें आ रही थी, तो उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में, मेरे प्रियो, हमारे अपने ही मसीह भाई बहनों के मुंह से ऐसी बातें आ सकती हैं, ऐसी डाउटफुल वाली बातें आ सकती हैं। And they also know the Lord. और वो भी यीशु मसीह को जानते हैं। So sometimes your friends, your brothers and sisters in Christ can also doubt. तो हम देखते हैं कि कई बारी हमारे खुद के भाई बहन मसीह में जो हैं, वो खुद भी यीशु मसीह ने जो आपको बोला है करने के लिए, उस पे शंकित हो सकते हैं, उसको डाउट कर सकते हैं। But today Jesus is calling out to you to come out of that boat. लेकिन आज यीशु मसीह आपको आवाज देकर कह रहे हैं कि आजा, उस नाव से बाहर आजा। To step out into the water. तो नाव से बाहर आके पानी पे अपने पाँव को रख। I've heard it said by someone else. मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है। I think a pastor once said this. एक पास्टर ने इस प्रकार से बोला, That if you want to walk on water, you have to step out of the boat. अगर तुम पानी पे चलना चाहते हो तो तुम्हें नाव से बाहर तो पाँव रखना पड़ेगा। So are we going to just sit around and wait for the perfect scenario? तो क्या हम बस बैठे रहेंगे नाव में और एक बिल्कुल अच्छी परिस्थिति, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, उस परिस्थिति का होने का इंतजार करेंगे? Are we going to sit and take a vote where everybody agrees? क्या हम एक चुनाव करने लग जाएंगे, वोटिंग करने लगेंगे कि भाई चलो वोट करते हैं, और ज्यादा लोग जो बात कहेंगे उसको मानेंगे? Are we waiting for perfect circumstances? हम बिल्कुल ही सही और अच्छी परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, Or should we just draw close to God in any situation? और या फिर मेरे प्रियो, में और आप परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अपने पाँव को बढ़ाते चले जाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। God says, if you hear my voice, don't harden your hearts like your forefathers did at Meribah. यीशु मसीह कहते हैं कि आज अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को पत्थर जैसा कठोर ना बना लो, जिस प्रकार तुम्हारे बाप दादाओं ने मरबा के सामने किया था। Don't resist. यीशु की आवाज को आप रेजिस्ट ना करें। Don't grow cold. आप ठंडे ना पड़ जाए मेरे प्रियो। Don't ignore the Lord. आप यीशु मसीह की आवाज को इग्नोर ना करें। What a privilege that He is calling to you. आप सोचिए ये कितनी सौभाग्य की बात है कि आप अगर यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं और वो आपको बुला रहे हैं, That He wants you and He wants you close to Him. और वो आपको चाहते हैं मेरे प्रियो, और चाहते हैं कि आप उनके करीब आ जाएं। So step out of your comfort zone. तो आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए मेरे प्रियो, Walk towards Christ. और यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। Maybe it could be something like just going to church. और हो सकता है कि एक छोटी सी ऐसी कोई बात हो कि आपको चर्च जाना है, Or maybe it's something bigger. Maybe it's some direction that you need to do in your ministry. और हो सकता है कुछ इससे भी बड़ी बात हो जहाँ पे यीशु मसीह आपको एक निर्णय लेने को कह रहे हैं अपनी सेवकाई में। Remember, He is faithful. याद रखें कि यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। He will take care of you. He's not going to let you just drown. वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपको ऐसे डूबने नहीं देंगे। If you happen to go in the wrong direction, He'll redirect you. अगर आप किसी गलत दिशा में मुड़ जाएंगे तो वो वापस से आपको सही दिशा में मोड़ के ले आएंगे। God knows you better than you know yourself. परमेश्वर आपको आपसे भी बेहतर जानते हैं मेरे प्रियो। Remember in Psalm 139, it says, He knew me before I even became me. भजन संहिता 139 में इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं नहीं भी बना था, तब से परमेश्वर मुझे जानते हैं। Something interesting to note here, एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, that even though Peter is the only one to get out of the boat, जबकि पतरस इकलौता है जो नाव से पाँव को बाहर रखता है, he's the one that gets scolded. और यहाँ पे पतरस ही पाँव को बाहर रखता है नाव से, और उसी को डांट पड़ जाती है यीशु मसीह से। Instead of the other ones in the boat getting scolded, why didn't you get out? Peter's the one that gets scolded.
और यीशु मसीह हम सोचेंगे तो यीशु मसीह को तो जो नाव में बैठे हैं, जो बाहर निकलने को सोच भी नहीं रहे और हिम्मत नहीं कर रहे, उनको डांटना चाहिए तो उनको नहीं डांट रहे हैं, वो पतरस को डांट रहे हैं जो अकेला है नाव से पैर बाहर रखने के लिए। Peter is the one that's acting out in faith. पतरस है जो विश्वास में अपने कदम को नाव के बाहर रखता है। But here he is the one getting a rebuke. पर हम देखेंगे कि पतरस है जिसको यहाँ पे डांट पड़ रही है। Remember in Hebrews 12 it says, a father disciplines his child in whom he delights. इब्रानियों 12 में इस प्रकार से लिखा है कि एक पिता जब अपने बच्चे में आनंदित होता है, जिस बच्चे में आनंदित होता है उसको डांटता फटकारता है। So this disciplining, this scolding is God's love for us. तो ये डांटना फटकारना ये परमेश्वर का हम प्रेम है हम सबके लिए। God knows that you can do it परमेश्वर जानते हैं कि आप कर सकते हैं because he has given you the strength, he has equipped you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको ताकत दी है और वो सारे साधन दिए हैं करने के लिए जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहे हैं। Maybe it looks like he's being hard on you, और शायद ऐसा देखने से लगे कि कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं परमेश्वर आपके ऊपर, but that's because he knows you can do it पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं through his strength. उसकी ताकत, यीशु मसीह की ताकत के द्वारा। Amen. आमीन। So in verse 32, finally both Christ and Peter get into the boat. और हम 32 वर्स में देखेंगे कि फाइनली यीशु मसीह और पतरस नाव में आ गए And then the storm ceases. और फिर तूफान थम गया। So the storm was almost a test, a challenge. और अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो तूफान था वो एक तरह से एक परीक्षा की घड़ी थी। Something to really think about is that if it was a sunny, peaceful day, and if Jesus had asked them to walk on water, maybe they would have all tried it. अगर हम इस बात को सोचें तो अगर एक बहुत ही अच्छा सा दिन होता जहाँ पे सूरज निकला होता, मौसम साफ होता, आसमान साफ होता, कोई तूफान नहीं होता और अगर तब यीशु मसीह कहते कि चलो पानी पे चलना किसको है तो शायद सभी मान जाते। Maybe if the water was perfectly still, you would say, okay, I'll give it a go. हो सकता है कि पानी जब बिल्कुल शांत हो तो आप खुद भी कह देंगे कि हाँ यीशु मसीह चलो मैं पानी पे चलने की कोशिश करता हूँ। But of course, our whole life is not a perfectly still, peaceful day. लेकिन हमारी जो पूरी जिंदगी है मेरे प्रियो वो पूरा एक शांति पूर्वक दिन के समान नहीं है कि एक बहुत ही शांति अच्छा सा दिन चला गया। Storms come and go, तूफान आते और चले जाते हैं and sometimes opportunities show up in these storms. और कई बारी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इन तूफानों के बीच में आती हैं। So we need to trust God even in the darkest moments. तो हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना है जबकि अंधेरे वाला और ये परीक्षा का समय जब आता है। So the key here is don't waste the purpose of your storm. जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो आपके तूफान का पर्पस है, जिस वजह से वो तूफान आपके जीवन में आया है, आप उसके पर्पस को मिस ना करें। Amen. Ask yourself this. आमीन। इस बात को अपने आप से पूछें, What is God trying to teach me in the storm? परमेश्वर या यीशु मसीह मुझे इस तूफान के बीच में क्या सिखाना चाहते हैं? Try to look for an opportunity. और कोशिश करें इस बात को देखने की कि इस तूफान के बीच में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा दरवाजा कौन सा है। Rather than making excuses, एक्सक्यूजेस बनाने की जगह, बहाने बनाने की जगह, let's look for the opportunity. आइए हम तूफानों के बीच में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। Remember, as long as we keep our eyes on Christ, और याद रखें जब तक मेरी और आपकी आंखें यीशु मसीह पे लगी हुई हैं we will soar above the storm. हम तूफान के ऊपर उड़ जाएंगे। Just like Peter kept his eyes on Christ, जिस प्रकार से पतरस जिसने अपनी आंखें यीशु मसीह पे रखी, we don't need to focus on the storm. हमें उसी प्रकार से पतरस के समान यीशु मसीह पे अपनी आंखें रखने की जरूरत है। Because those doubts will cause us to sink. क्योंकि जो डाउट्स हैं, जो शंका पूर्वक बातें हैं, वो बातें हमें डुबाने लग जाएंगी। It's not the storm that caused Peter to sink, it was his doubts.
अगर हम ध्यान दें मेरे प्रियो, तो तूफान नहीं था जिसने पतरस को डुबाया। वो पतरस के खुद के शंका वाले, डाउटफुल वाले विचार थे जिसने पतरस को डुबाना शुरू करा। So it's your response, either faith or doubt. तो ये कोई भी तूफान में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या विश्वास में कर रहे हैं या डर या डाउट में कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप डूबेंगे या ऊपर निकल जाएंगे। So if you are in Christ, the storm has no power over you. तो मेरे प्रिय, जो आज ये आपको ध्यान देने की बात है, आप कमेंट पे लिख सकते हैं इस समय, इस बात को नोट कर ले मेरे प्रियो, कि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो तूफान का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। तूफान आपको नहीं डुबा सकते मेरे प्रियो। Storms cannot drown you. तूफान आपको नहीं डुबा सकेंगे मेरे Only प्रियो। your own doubts could. सिर्फ आपके जो विचार हैं, जो सोच हैं, जो डाउटफुल बातें हैं, जो डर की बातें हैं, सिर्फ वही आपको डुबा सकती है मेरे प्रियो। In Romans 3:22 it says, रोमियो 3:22 में इस प्रकार से लिखा है, righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह में सबको दे दी गई है जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। So put your faith in Christ. इसलिए अपना विश्वास आप यीशु मसीह में रखें। In verse 33 it says, 33 वर्स में लिखा है, immediately Jesus extended his hand and caught him. मत्ती 14 जो हम पढ़ रहे थे उसके 33 वर्स में लिखा है कि तुरंत यीशु मसीह ने अपना हाथ पतरस की ओर बढ़ाया और उसको थाम लिया। So if you start sinking, God will save you at once. तो अगर आप डूबने लगते हैं तो यीशु मसीह तुरंत अपना हाथ बढ़ा के आपको बचा लेंगे। All you need to do is cry out to Christ. आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है कि आप यीशु मसीह के नाम को पुकारें। Just call on his name सिर्फ उसके नाम को आप पुकारें and God will grab you. और परमेश्वर आपको पकड़ लेंगे। But it's a choice. लेकिन ये एक चुनाव की बात है मेरे प्रियो। You can either believe the lies of the devil या तो आप शैतान की सारी जो झूठी बातें हैं उस पर विश्वास कर लें, or you can believe the words of God. और या जो परमेश्वर की जो सच्ची बातें हैं आप उस पर भरोसा रखें। The devil, the demons are keep going to be planting doubt in your mind. जो शैतान है वो आपके मन में डाउटफुल बातें डालता ही चले जाएगा। But focus on Christ. लेकिन यीशु मसीह पे अपने ध्यान को रखें। Call upon the name of God whenever you find the need. जब भी आपको जरूरत हो यीशु मसीह के नाम को पुकारें मेरे प्रिय। Today I want to challenge you that no matter what you're going through, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आज अपने जीवन में आप किसी भी चीज से क्यों नहीं होके गुजर रहे, and whether those situations are a result of poor decisions in the past, हो सकता है कि जिस परिस्थिति, जिस तूफान में आज आप फंसे हैं, आपने कोई ऐसे चुनाव बीते जीवन में कर लिए थे, बीते सालों में, जिसकी वजह से आप उस तूफान में फंस गए हैं। whether you're facing some sort of illness, हो सकता है आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, whether you are stuck in some sort of debt, हो सकता है किसी डेट में फंस गए हैं आप, कर्जे में फंस गए हैं आप, whether some of your relationships are tearing apart, हो सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो संभल नहीं रहे, or you're facing some sort of challenge in your jobs, और हो सकता है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई परेशानी की बात चल रही challenge है, in running your business. कोई परेशानी चल रही है। अगर आपके पास बिजनेस है तो उसको चलाने में कोई मुश्किल आ रही है। No matter what you are going through, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है मेरे प्रिय, if this is the path that God has called you on, अगर सच में आप इस बात को जानते हैं कि इस काम के लिए आपको यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया है, call out to Him and He will save you. तो आप यीशु मसीह पे भरोसा रखें, उसके नाम को पुकारें और वो आपको आके बचा लेंगे। He is always there for you. वो हमेशा आपके साथ है। The key takeaway here is don't doubt. जो हाईलाइट और ध्यान देने वाली बात है कि आप शंका ना करें मेरे प्रिय। Don't give in to despair. आप निराशा में मत अपने आप को दे दें, निराशा में ना चले जाएं मेरे प्रिय। God has called you for this assignment and only He can get you through it. यीशु मसीह ने अगर आपको इस असाइनमेंट के लिए, इस काम के लिए बुलाया है, तो सिर्फ यीशु मसीह ही आपको मदद कर सकते हैं इसको पूरा करने के लिए। Don't think you need to rely on your own strength. आप ना सोचें कि आपको ये खुद से करना पड़ेगा, अपनी ताकत में करना पड़ेगा।
If you think it's your own natural talent अगर आपको लगता है कि जो आपके पास टैलेंट्स हैं अगर उनसे हो सकेगा, or your own personal finances या आपके जो पास पैसे रुपया हैं उससे हो or सकेगा, whatever resources that you have yourself, या जो कुछ भी चीजें आपके पास हैं आप समझते हैं अगर उससे हो जाएगा, it can only be done by Christ. ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है. Firstly, whatever we have is given by God anyways. और अगर हम सोचें तो चाहे रुपया हो, पैसा हो, गिफ्ट हो, टैलेंट हो, वो सब कुछ तो यीशु मसीह का दिया है. In Philippians chapter 1 verse 6 it says, फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसकी 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, He who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ. उसने जिसने आपके अंदर एक अच्छे काम को शुरू किया है वो यीशु मसीह के आने वाले दिन तक उस काम को पूरा करेंगे और आपको संभाल के रखेंगे. So Peter was equipped with everything he needed to get through the storm. तो पतरस को सब कुछ यीशु मसीह ने दिया था जिसके द्वारा वो उस तूफान के पार जा सकता है. And even in our human weakness, if you fall, God will still save us. और अपनी इंसानी कमजोरी में अगर हम गिर भी गए या डूब भी गए तो यीशु मसीह हमें निकाल देंगे अगर उनको बुलाएंगे तो. Amen. आमेन. Don't doubt your calling. अपनी बुलाहट को आप डाउट ना करें मेरे प्रिय. Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखों को निरंतर यीशु मसीह पे लगा के रखें. Don't put your eyes on that storm, on those winds, on those waves. अपने ध्यान को तूफान की लहरें और वो लोगों की बातें और बुरी परिस्थितियों पे ना ध्यान लगाएं. Our hope is that this word will be a blessing to you. हमारा विश्वास है ये कि आज का वचन से आपने आशीष पाई है. I hope that this can be encouragement to you. मैं इस बात को विश्वास रखता हूँ कि इस वचन ने आपको प्रोत्साहित किया है आज. Even in our own lives, whenever we have fallen sick, हमारे खुद के जीवन में अगर मैं सोचूं तो जब भी हम बीमार पड़े हैं, whenever we have either had to move to another town or change jobs or we have lost a job or any situation that we have faced in life, we have always cried out to God. चाहे हमारे बीमारी के समय हो, चाहे हम एक शहर से दूसरे शहर में हम अपना मूव करे हों, या हमने नौकरी खो दी हो, हमारे खुद के जीवन में भी कैसी भी परिस्थिति हो, जब हमने यीशु मसीह को जब भी पुकारा है, हमने आजमा के देखा है यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं और उन्होंने आके हमको बचाया है. Amen. God has never abandoned us. आमीन. परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है And He is not going to abandon you. और वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे. He is truly our good shepherd. वो सच में एक अच्छे गड़िए हैं. Amen. आमीन. So if you're watching this live or if you go back and replay it, please put your comments and prayer requests. अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं आज या आप इसको रिप्ले में देख रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट्स में डाल सकते हैं. If we don't see it now, we'll check it out later and we will most definitely pray for you. अभी हम कोई कमेंट देख नहीं पा रहे यहाँ पे. अगर कोई भी कमेंट आप डाल रहे हैं और हमसे छूट रहा है, इस समय हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ज़रूर से हम इस लाइव के अंत में आपके हर एक प्रार्थना विषय के बारे में प्रार्थना करेंगे. You can also reach out to us at Set Apart by God Ministries. आप हम तक पहुँच सकते हैं Set Apart by God Ministries पेज पे जो फेसबुक पे है, And we'll definitely respond to you there. और हम ज़रूर से आपको रिस्पॉन्स करेंगे वहाँ पर. Amen. आमीन. Praise be to God for all things. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक अच्छी बातों के लिए. Joycey will end us with a word of prayer and a song of praise and worship as well. जॉयस यानी कि मैं हम सब मिलके आज अब एक आराधना में जाएंगे, एक छोटे से गाने को गाएंगे और उसके बाद एक आखिरी प्रार्थना में हम जाएंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. You call me out upon the waters,
great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. मेरे साथ फिर से गाइड करें. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Let my faith be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you
ही एक आखिरी प्रार्थना में चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं अब्बा हम। पिता सच में हम कुछ नहीं हैं पिता, पर आज आपने हम दोनों को इस्तेमाल किया पिता, अपने लोगों से बात करने के लिए, उनको आशीषित करने के लिए पिता। और आज के इतने सुंदर वचन से हमने भी पिता उतनी ही आशीष पाई है जितना कि सुनने वालों ने पाई है मेरे पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस घड़ी जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता, और जो लोग फ्यूचर में सुनने वाले हैं पिता, ये इत्तेफाक नहीं होएगा, ये कोइंसिडेंट नहीं होएगा कि वो इस वचन को सुनेंगे मेरे पिता। आपके द्वारा वो इस वचन के ओर लाए जाएंगे मेरे परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा पिता जितनी भी शंकाएं हैं उनके मन में, अपनी बुलाहट को लेकर, अपने असाइनमेंट को लेकर पिता, वो सारी शंकाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता। होने दे पिता पतरस के समान हम सब पिता वो निर्णय लें, उस डिसीजन को लें कि नाव से अपने पाँव को बाहर निकालें और पानी पे चल के आपकी ओर आए मेरे पिता। धन्यवाद देते पिता इस सारे समय के लिए, हर एक चीज़ के लिए पिता। और फिर से पिता हम शी बिलीव्ड पेज को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं पिता। ये एक अच्छी भूमि है पिता, यहाँ पे जितने भी वचन के बीज हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा पिता बोए जाते हैं, वो बहुतायती से फल लाए मेरे पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। Amen. So God bless you. God bless you. Thank you for joining us. We believe that you have been blessed by this message. Let us know through the comments. Comments में डाल के अपनी प्रार्थना विषयों को बताएं। नहीं तो Set Apart by God Ministry पेज पे जाके भी अपनी प्रार्थना विषय को आप हमें बता सकते हैं। God bless you. Don't doubt your calling. Jesus loves you. Amen. Amen.